Hello class, good morning to all. And now today we will start the next kind of reaction of haloalkanes. That means you have elimination reaction. Okay. So note down the topic here, elimination reaction. Elimination reaction की बात करने वाले हम लोग आज. ठीक है. Elimination reaction is also known that dehydrohalogenation. तो note down this dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. ठीक है. So first of all understand the meaning of dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation clear? यानी कि to removing of halogen atom. ठीक है. या इसको बोले to remove of halide ions from haloalkanes. Yeah, simply you can say that the removing of halogens from haloalkanes is called dehydrohalogenation reaction. Clear? And you are studying about the elimination reaction. ठीक है. Elimination that means you are eliminating any atoms from your respective compounds. ठीक है. Suppose you have the reaction in this manner: CS3, CS2, Cl. CS2Cl. So here you are saying that you have this CS2Cl. Clear? This is you have simply you can see a group. Yeah, one carbon attached with the one halogen atom. Clear? So for the better understanding, you can write this compound in this manner. That means CS3CH single bond C H and one Cl is present here. Clear? So you can write this type of compound in this manner. Clear? Same thing, CS3 CS2Cl. So you are saying that this carbon is containing one halogen atom. One halogen atom. That means this carbon is known that particularly alpha carbon. Okay. So what is alpha carbon? Alpha carbon is that carbon which have attached a halogen atoms. ठीक है. यानी कि वो कार्बन होगा जहां पे आपके पास क्या लगा होगा, हेलोजन लगा होगा या अटैच्ड विद एनी फंक्शनल ग्रुप. अब यहाँ पर OH हो, I हो, Br हो, whatever you have. So this carbon, this typical carbon is called alpha carbon. ठीक है. इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग? अल्फा कार्बन पढ़ने वाले हैं. ठीक है. This is called the alpha carbon. And second thing is that the next carbon of the alpha carbon. ठीक है. Next adjacent carbon of the alpha carbon is called beta carbon. ठीक है. तो this carbon is called, this carbon यहां लिख ले चुपके से, this carbon is called beta carbon. This point is clear? Alpha carbon and the beta carbon. Clear? What is the alpha carbon? Alpha carbon means that the carbon with attached with any functional group. यानी कि directly attached with any functional group. Clear? Suppose you have Cl, you have Br, you have OH, whatever you have, it's called alpha carbon. Clear? And second carbon, you have beta carbon. Beta means the adjacent carbon of the alpha carbon. It's called beta carbon. यानी कि जो अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच कार्बन होगा उसे आप बोलेंगे बीटा कार्बन. क्लियर? एंड द हाइड्रोजन अटैच्ड विद दिस बीटा कार्बन इट्स कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन. क्लियर? अंडरस्टैंड दैट मीन द हाइड्रोजन अटैच्ड विद दिस बीटा कार्बन इट्स कॉल्ड बीटा हाइड्रोजन. ठीक है. ये जो आप H देख रहे हैं, इस H को आप बोलेंगे बीटा H. क्या बोलेंगे? बीटा H बोल देंगे. ठीक है. दिस पॉइंट इज क्लियर. देखिए बात क्या करने वाले हैं, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन. अब अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ H, इट्स कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. ठीक है. उसको अल्फा हाइड्रोजन पढ़ेंगे हम लोग. बीटा कार्बन एंड बीटा हाइड्रोजन. ठीक है. दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ सी, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. मेन थिंग इज दैट इन दिस एलिमिनेशन रिएक्शन इज दैट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द अल्फा कार्बन, व्हाट इज द बीटा कार्बन. ठीक है. एंड व्हाट इज द बीटा हाइड्रोजन. ठीक है. अब बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ H क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा. ठीक है. इट्स दिस पॉइंट इज क्लियर. सो नाउ मूव दैट. ठीक है. सो हम इसको भी सेम कंडीशन में लिख लेते हैं. ठीक है. इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड दैट. क्लियर. सो सी हियर यू हैव नाउ CS3 CH H. Here you have again CS2 and one Cl is there, plus you have the KOH, potassium hydroxide, and this potassium hydroxide is in alcoholic medium. ठीक है. This is alcoholic. ठीक है. And whenever you heat to this, so it will give you CS3 CH double bond CS2 plus KCl plus water.
So this is an example of elimination reaction या you can say dehydrohalogenation reaction. ठीक है, dehydrohalogenation आपका halogen atom बाहर निकल गया, this called dehydrohalogenation. ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ. बट एक मेन बात याद रखना कि व्हाट काइंड ऑफ हेलोजिनेशन इज दिस या व्हाट काइंड ऑफ एलिमिनेशन इज दिस. क्लियर, दिस इज योर अल्फा, दिस इज बीटा. ठीक है, सो इफ यू सी प्रॉपरली हियर द बीटा हाइड्रोजन इज लूज फ्रॉम हियर. ठीक है, आपका जो हाइड्रोजन गया हुआ है वो कहां से गया है? फ्रॉम द बीटा गया हुआ है, फ्रॉम द बीटा गया हुआ आपका हाइड्रोजन. सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन. Beta elimination reaction, that means those reaction in which the hydrogen is removed from the beta carbon is called beta elimination reaction. ठीक है, what is beta carbon? Beta carbon, that means the adjacent carbon of the alpha carbon. Here, what is alpha carbon? Alpha carbon, that carbon which have which attached with any, which directly attached with any halogen atom या with any functional group. It's called beta carbon या alpha carbon and the beta carbon. This point is clear. Alpha beta, there is no issue about alpha beta. Now see that. Suppose you have the another example is, another example you have CS3, CS2, CS2, CH, CS2, Cl, CS2, Cl. Clear? Now you are saying that your halogen atom is directly attached with this carbon. With this carbon, directly attached with this carbon. So this carbon is called alpha carbon. Clear? And the next carbon, next adjacent carbon of the alpha carbon is called beta carbon. It's called beta carbon. So we all know that the hydrogen will remove from the beta carbon. कहां से निकल के जाएगा? बीटा कार्बन के साथ निकल के जाएगा, बशर्ते you have the alcoholic KOH and you are giving heat to it. So H will remove from here. H will remove from here. Now see what is the product in this case? The same thing, like the same reaction, same above reaction. So the one beta hydrogen will remove from this and form double bond in between this carbon, double bond between a beta carbon and the alpha carbon. So the product will be CS3, CS2, CS2. Now you have CH. One H will remove, so you have only CH या H in this manner. CH double bond. CS2 plus you have now KCl plus water, that means H2. So this is your product and this is your elimination reaction called beta elimination reaction. ठीक है, suppose you have another example in this manner. CS3, CS3, Br and a CS3. Clear? Again you have the KOH, potassium hydroxide, in alcoholic medium and you are giving heat to it. So here देखिए, all this is called alpha carbon. This is alpha carbon. ठीक है, you all have the beta carbon. ठीक है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन. ठीक है, सारे का क्या है आपके पास? all you have beta carbon. So and see here the all the carbon या all the beta carbon are the identical. ठीक है, दे ऑल पोजेस सेम पोजीशन. ठीक है, सबके पास क्या है? सेम पोजीशन है. 1 2 लिखें, 1 2 करें, 1 2 करें. ठीक है, दैट मीन 1 नंबर इज गिवन टू दिस कार्बन, अल्फा कार्बन. तो 1, दिस द 2, 1 2 1 2. दैट मीन ऑल द बीटा कार्बन आर द आइडेंटिकल. ठीक है, सो यू कैन रिमूव H फ्रॉम एनी वन. सो यू हैव द डिजायर प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड CS2, CS3 and CS3. This point is clear. C double bond CS2, CS3 and CS3 plus you have product is KBr plus water. So this is about your elimination reaction. Okay, this point is clear. Elimination, that means this is called beta elimination. Beta, that means the hydrogen is removing from the beta carbon. Clear? It's called the beta elimination. And what is beta elimination? Yeah, what is beta carbon? The carbon directly attached with the alpha carbon. It's called the beta carbon. And the hydrogen attached to this beta carbon is called the beta hydrogen. Point clear? And what is alpha carbon? Alpha carbon, that carbon which attached with any functional group. Attached with any functional group, any halogen, whatever you have, this called alpha carbon. Clear? This point is clear? Now see here.
next thing is that suppose you have a compound which contain more than one beta carbon, which contain more than one beta carbon. ठीक है, हो सकता है कि आपके पास क्या मिले, दो बीटा कार्बन मिले, like this. Suppose you have this CS3, CS2, CH, Br, CS2, CS3. ठीक है, suppose you have this kind of compound. ठीक है, so you are saying here this alpha, this beta and this beta. ठीक है, आपको क्या मिल गया, दो बीटा कार्बन मिल गए. ठीक है, एक बीटा कार्बन लेफ्ट में है, एक बीटा कार्बन आपके राइट में है. सो यू हैव द टू बीटा कार्बन. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर कहां से हम H निकाल के चले. ठीक है, सो इन दिस केसेस यू हैव द टू पॉसिबिलिटीज, यू हैव टू पॉसिबिलिटीज टू फॉर्म द टू कंपाउंड. Clear? That means the one compound is formed with removing of one beta hydrogen from this side. In second case, you will remove the beta hydrogen from this side. Okay? So you will get the compound plus you have again alcoholic KOH and you are giving heat to it. Okay? So you have the two possibilities and the two chance to form product. So we are firstly we will form product from here. Okay? That means you have suppose CS3, CH, H, single bond CH, Br, CS2, CS3. ठीक है, this H will be gone, so product will be CS3. Yeah, you can say this H will gone, so product will be here. In this manner, Br is also gone, so CH double bond CH. So this type of compound will form. ठीक है, CS3 CH, CS3 CH. ठीक है, सॉरी CS3, एक और हमारे पास CS2 था, CS2 एंड एक CS3 ये था हमारे पास. ठीक है, CS3 CS2 CH, नहीं सॉरी दिस इज बीटा कार्बन अगेन लिटिल बिट चेंज देयर. ठीक है, बीटा कार्बन ये था आपके पास, तो हियर इज ओनली CS3. ठीक है, द फर्स्ट वन इज करेक्ट. ठीक है, CS3 यहां से आपका H निकल गया, CH डबल बॉन्ड CH. हमेशा बॉन्ड जो जनरेट होगा बच्चे, जो C डबल बॉन्ड C बनने वाला है वो हमेशा बनेगा इन बिटवीन बीटा एंड इन बिटवीन अल्फा. ठीक है, यानी कि बीटा एंड अल्फा के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड. ठीक है, तो यहां डबल बॉन्ड बन गया इन बिटवीन द बीटा एंड अल्फा प्लस सेकेंड प्रोडक्ट यू हैव CS3, CS2, here you have CH. अब यहां से H निकल के जा रहा है, that means डबल बॉन्ड CH, CH, CS3. तो अब यहां बन गया, यहां पर क्या अल्फा बीटा, इन दोनों के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड जनरेट हो गया. तो देयर यू हैव द टू प्रोडक्ट, हियर यू हैव टू प्रोडक्ट. कब मिलेंगे दो प्रोडक्ट, व्हेनेवर यू हैव द पॉसिबिलिटीज ऑफ द टू बीटा कार्बन. ठीक है, जब आपके पास दो बीटा कार्बन होंगे तो दैट मीन यू हैव द टू बीटा प्रोडक्ट, या यू हैव द टू एल्कीन, या टू प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली. दिस पॉइंट इज क्लियर. नाउ I think that everything is clear in this topic. That means what is the beta elimination, what is the beta, you can say that simple elimination, what is the dehydrohalogenation. ठीक है, so here you are saying that one major thing आपको जो देखने को मिल रहा है, this one thing is that means the abstracting of hydrogens. ठीक है, आपने क्या बोला, डायरेक्टली you are forming alkene in this topic. ठीक है, you are forming alkene in this topic, so you can say that alkene मिल रही है आपको. This is clear, so I am going to delete this from the board. So see that what is actually happening in this reaction. ठीक है, you have this kind of condition. See, one H is here, C, one X will here in this manner. ठीक है, that means it have valency, तो will do in this manner. ठीक है, करने का रिक्वायरमेंट नहीं, because we all know that the carbon having the 4 valency, but do from your convenience 1H, 1, 4 and the 4. ठीक है, ये अल्फा था, ये बीटा था. ठीक है, सो क्या था, एक बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा था, आपने क्या लिया था, आपने रिएजेंट यूज कर रहे हैं KOH. KOH में जो न्यूक्लियोफाइल है बच्चे वो क्या है आपका, ये OH है आपका, दिस इज न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल हमेशा क्या होता है, इनकमिंग होता है. क्या होगा, हमेशा इनकमिंग होगा. ठीक है, और ये आप देख रहे हैं X, ये जो आप X देख रहे हैं, X क्या आपका हैलाइड है, तो इसे क्या बोलते हैं आप, ये लिविंग ग्रुप हो गया आपके पास, दिस कॉल्ड लिविंग ग्रुप. यानी कि क्या हो जाएगा कि OH आपका इनकमिंग करेगा एंड OH X आपका एलिमिनेट कर जाएगा. ठीक है, ये आपने सीखा था रिएक्शन के अंदर. बट हम देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन में क्या होगा, आप एलिमिनेट कर रहे हैं किसी को,
आप क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। आप OH आपका इनकमिंग ना करके क्या कर रहा है, वो भी आ रहा है और साथ में यहां से कोई चीज लेके बाहर निकल जा रहा है एंड फॉर्मिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, सो व्हाट हैपनिंग, बी नेगेटिव, आपके पास ये क्या मिल गया, कोई न्यूक्लियोफाइल है आपके पास। ठीक है, सो व्हाट एक्चुअल हैपनिंग इन द मैकेनिज्म ऑफ दिस एलिमिनेशन रिएक्शन, यू सी दैट दिस न्यूक्लियोफाइल विल एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन या एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द बीटा हाइड्रोजन या बीटा कार्बन। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो जो प्रोटॉन का अब्स्ट्रैक्शन कर रहा है वो कहां से कर रहा है, फ्रॉम द बीटा कार्बन कर रहा है। ठीक है, दैट्स व्हाई आपने कहा बीटा एलिमिनेशन, आप एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट ना करके क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर OH यहां पर चिपक जाता दैट वाज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द सिंपल रिएक्शन कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन, बट हियर यू आर डूइंग एलिमिनेशन, दैट मीन द प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, सो दिस एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन इन दिस मैनर। ठीक है, तो प्रोटॉन लेके चले जाएगा यानी कि H+ लेके जाएगा एंड दिस बॉन्ड विल बी ट्रांसफर टू दिस C सिंगल बॉन्ड C। क्लियर, यानी कि ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है आपके पास ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एट द सेम मोमेंट एट द सेम टाइम दिस हाइड्रोजन विल ऑल्सो लीव द प्लेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा C 2 बॉन्ड, ये बॉन्ड यहां आ गया इन बिटवीन C एंड C, तो फॉर्म C डबल बॉन्ड C, 2 बॉन्ड ऑलरेडी आपके पास है एंड 1X बाहर निकल जाएगा प्लस X नेगेटिव। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड योर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड दिस इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एनी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, बातें क्लियर है कैसे काम करना है। ठीक है, लेट्स दिस इफ एनी कंफ्यूजन, तो हम एक बार और बात कर लेते हैं, एक और रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइम पर रिएक्शन ऐसे चूज कर लेते हैं हम लोग जहां पर 2 बीटा कार्बन मिले आपको। ठीक है, देन विल प्रोसीड विद द सेम मैकेनिज्म, विल प्रोसीड विद द सेम मैकेनिज्म। सो देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा वहां पे और क्या बातें होने वाली। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। ठीक है, यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा इट एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन या इट एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम दिस बीटा कार्बन। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस आप देख लें, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। ठीक है, आपका जो हाइड्रोजन जाएगा हमेशा जाएगा बीटा कार्बन से। ठीक है, दैट्स व्हाई आप इसे बीटा एलिमिनेशन बोल रहे हैं। ठीक है, एलिमिनेट कर रहे हैं आप अपने को। ठीक है, सो बी अटैच द प्रोटॉन फ्रॉम दिस एंड दिस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसफर टू दिस कार्बन कार्बन। ठीक है, इसको बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, जैसे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा सो इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड। क्लियर, सी यू हैव द कंपाउंड। ठीक है, नाउ डू वन मोर एग्जांपल हियर। ठीक है, डू मोर एग्जांपल। क्लियर, डू मोर एग्जांपल दैट इन दिस मैनर you can generate one example in this manner, CS3 CS2 and here you have, you can say CH H CH Br, again CH H CS2 and the CS3. ठीक है, so you are saying that this is alpha, particularly this is beta and this is again beta. ठीक है, so you have the 2 chances. First chance is that KOH alcoholic, you are giving heat to it. So what is the chance? See, in the first case this H will be down. ठीक है, ये H यहां इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहां दे सकता है आपका। ठीक है, और ये खुद बाहर निकल जाएगा, खुद क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और सेम टाइम क्या हो रहा है कि आपका Br भी बाहर निकल रहा है। ठीक है, whenever the H is abstracting from the OH negative from the nucleophile, so Br will also remove their position. ठीक है, वो भी बाहर हो जाएगा। क्यों बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चले जाएगा। ठीक है, सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, आप इस H को बाहर लेके जा रहे हैं, ये H बाहर जा रहा है, सो दिस बॉन्ड विल बी ट्रांसफर टू दिस कार्बन। ठीक है, और ये बाहर निकल जाना सेम काम पे। ठीक है, यानी कि आपका बॉन्ड यहां बन सकता है, यहां बन सकता है। दैट मीन यू विल गेट द 2 प्रोडक्ट। द फर्स्ट प्रोडक्ट मिलेगा आपको CS3 CS2। देखो ये बीटा है आपके पास, ये बीटा है तो CH बीटा और अल्फा के बीच बनना है बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, बीटा एंड अल्फा के बीच बनेगा डबल बॉन्ड। क्लियर, सो डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, यहां पर क्या हो जाएगा फिर आपका, यहां पर आपके पास ऑलरेडी सेम पोजीशन था। ठीक है, CS2, अब इसको ऐसे लिखेंगे फर्स्ट टाइम। ठीक है, CS2 एंड CS3। दिस प्रोडक्ट इज कम फ्रॉम रिमूविंग ऑफ दिस H। अगर ये H चाहता है तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस बन जाएगा आपके पास CS3
CH2, इसको ऐसे लिख दीजिए जैसा लिखा आपने, ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। CH, यहां पर CH डबल बॉन्ड, अब यहां बन जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो हियर यू हैव द टू प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। Why? Because you have the two बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। जब बीटा हाइड्रोजन दो हो जाएंगे तो मिलेंगे आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। उनमें से एक क्या बनेगा, मेजर बनेगा, एक आपका माइनर बन जाएगा, ठीक है। एक प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और एक क्या बनेगा, माइनर बन जाएगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ नोट डाउन दिस टू रिएक्शन फ्रॉम द बोर्ड। सो यू नोटेड द रिएक्शन, ठीक है। सो सी हियर, हमने बात तो कर लिया कि वी हैव फॉर्मिंग द टू प्रोडक्ट इज फॉर्मिंग, गोइंग टू फॉर्म। सो वन इज द मेजर, वन इज द माइनर। अब कौन सा मेजर होना है, कौन सा माइनर होना है, उसमें आपका क्या है, कुछ डिफिकल्टीज आएगा कि विच वन इज द मेजर, विच वन इज द माइनर, ठीक है। तो वो हम डिफाइन करेंगे बाय अकॉर्डिंग द सैडजेफ रूल, ठीक है। वन इज द साइंटिस्ट केम्स दैट ही हैव द नेम इज द सैडजेफ, ठीक है। कुछ नाम उनका सैडजेफ है, एंड ही प्रपोज्ड ए रूल, एंड द रूल इज नोन बाय सैडजेफ रूल, ठीक है। वो सैडजेफ रूल होता है। सैडजेफ रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज कार्बन या दोज कंपाउंड विच हैव द टू बीटा कार्बन, ठीक है। उनके लिए एप्लीकेबल है जहां पे दो बीटा कार्बन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। बात समझ गए। सो हम देखते हैं फिर सैडजेफ रूल, एंड विल टेक द प्रीवियस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जो हम पहले ले चुके हैं, और उनमें डिसाइड करेंगे कि विच वन इज द मेजर एंड विच वन इज द माइनर, ठीक है। बात वही कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का, इसी में एक पार्ट पढ़ने वाले हैं सैडजेफ रूल, ठीक है। आप नोट कर लीजिएगा, राइट द हेडिंग फ्रॉम हियर, सैडजेफ रूल, सैडजेफ रूल, सैडजेफ रूल, ठीक है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ठीक है, बहुत जरूरी रूल है आपके लिए, ठीक है, पढ़ना है, ठीक है। एंड सपोज यू हैव द कंपाउंड, ठीक है, पहले कंपाउंड लेते हैं हम लोग, CH3 CH2 CH H CH Cl and here is CH3, ठीक है। You have this kind of compound, ठीक है। So here again we are doing, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां लिख लेते हैं ताकि हम लोग एक साथ देख लें किसी रिएक्शन को, ठीक है, एक साथ देख लें रिएक्शन को, ठीक है। CH3 H CH Cl and here is CH3. Here is CH3 plus you have alcoholic KOH, ठीक है। So you have the two product, ठीक है। दो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने H यहां से निकाल लीजिएगा, सेम काम करेंगे, ठीक है। अल्फा है, बीटा बीटा दो है, पहले यहां से निकालिए, तो यहां से निकालने पे आपको प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। फर्स्ट कंपाउंड इज दैट। सेकंड कंपाउंड में H यहां से निकल जाएगा, चाहे तो इसको लिख लीजिए बहुत अच्छे से, CH2 H, ठीक है, ऐसा हो सकता है। H will remove from this side, so the product is CH3 CH2 CH2. Now the CH is the alpha carbon CH double bond CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सो आपके पास क्या मिल गया, दो प्रोडक्ट आपको मिल गए, ठीक है। जैसा आप एलिमिनेशन रिएक्शन करते थे सेम काम किया, एंड यू हैव द अल्फा, चाहे तो लिख लीजिए अल्फा एंड बीटा, ठीक है। यू हैव द टू प्रोडक्ट। नाउ विच वन इज द मेजर, विच वन इज द माइनर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सैडजेफ रूल, सैडजेफ इज प्रपोज दैट एल्कीन इज द मेजर एल्कीन जब प्रिफर टू द मेजर प्रोडक्ट विच हैव मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, more substituted alkyl group. That means you have the simple this C double bond C, ठीक है। ये आपके पास है, वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा, those alkenes is substituted with more या मैक्सिमम alkyl group, मोर एल्काइल या मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप्स, क्लियर। यानी कि दोज एल्कीन्स इज अ मेजर एल्कीन्स या प्रिफर्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, दोज आर सब्स्टिट्यूटेड विद मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूटेड बाय मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड कार्बन है इसके दाएं और बाएं कितने आप मैक्सिमम
एल्काइल ग्रुप को अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कहूं मेरे पास यहाँ पर 3 R है, 3 R और हियर इज 1 R। ठीक है, सो ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, बस सकता है आपको एक R हो तो दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि दोज एल्कीन इज द मेजर एल्कीन्स या प्रिफर्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट, दोज हैव मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप, more substituted alkyl group. Now see here, you have this in this you have the this is the major things. ठीक है, अगर मैं इसको सर्कल कर लूं ऐसे तो ये आपके पास है एक मेजर थिंग्स। ठीक है, आपको इसके दायां बाएं देखना है कि किसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, सॉरी किसके पास ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप है। हियर यू आर सीइंग दैट 1 और यहां कितने हैं 2। ठीक है, आपके जो राइट में है वो 1 है और लेफ्ट में कितने हैं 2 हैं। अब इसको ध्यान से देखिए, सिंगल बॉन्ड था CH, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये आपके पास है मेन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि इसके जो राइट साइड में है देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन, कोई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, बट यहां तो है। ठीक है, बट आपको इक्वल नंबर लेके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे लेफ्ट में बहुत सारे एल्काइल ग्रुप हैं और राइट में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो आपको देखना है बोथ द साइड द मैक्सिमम एल्काइल ग्रुप इज सब्स्टिट्यूटेड, सो दिस एल्कीन इज कॉल्ड मेजर एल्कीन। ठीक है, सो देयर इज कॉल्ड द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर एंड दिस इज माइनर। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, फर्स्ट वाला आपको मिलेगा मेजर एंड सेकंड वाला मिलेगा आपको माइनर। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सैडजेफ रूल। ठीक है, दैट मीन इन द एलिमिनेशन रिएक्शन या इन द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन दोज एल्कीन्स आर द मेजर प्रोडक्ट या प्रिफर्ड एज ए मेजर कंपाउंड विच आर या इन विच द डबल बॉन्डेड कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय मोर एल्काइल ग्रुप या मोर एल्काइलेटेड। ठीक है, जिनके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनको आप बोलेंगे वो आपका हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज योर सैडजेफ रूल। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर सैडजेफ रूल। ठीक है, दिस पॉइंट इज क्लियर। नाउ सी दैट आफ्टर द सैडजेफ रूल, फर्स्ट ऑफ ऑल नोट डाउन दिस पॉइंट, देन विल डिस्कस। क्लियर, नाउ सी दैट नाउ विल टॉक अबाउट the reactivity of haloalkanes towards elimination reaction। ठीक है, तो अब बात करें रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी ऑफ haloalkanes towards elimination reaction। elimination reaction। ठीक है, sorry for that। So you are saying that reactivity of haloalkanes towards elimination reaction। Clear? So you have a 3 kind of alkene या 3 kind of haloalkanes, 1 degree, 2 degree and 3rd degree। ठीक है, so सबके साथ हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एलिमिनेशन। ठीक है, देन डिसाइड करेंगे विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, हमने बात करना है अकॉर्डिंग टू द सैडजेफ रूल। ठीक है, सैडजेफ रूल इज प्रपोज दैट या इट्स सेड दैट कि वो एल्कीन मेजर होगा जिसके दाएं बाएं ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, बस सिंपल सा रूल है। ठीक है, ये याद रखना है कि दोज एल्केन इज प्रिफर्ड एज ए मेजर प्रोडक्ट विच इज मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्काइल या मोर एल्काइलेटेड। ठीक है, चलिए बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव इन दिस रिएक्शन CH3 CH2Br, तो आप कर रहे हैं अल्कोहलिक KOH। ठीक है, सो यू सी दैट प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अनसब्स्टिट्यूटेड है आपके पास, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो यहां लिख दिया आपने अनसब्स्टिट्यूटेड। अनसब्स्टिट्यूटेड यानी कि कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिंगल है आपके पास, तो इट्स द लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव इज दिस। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, देखो कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है आपके पास, तो ये होगा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड। सपोज यू हैव द रिएक्शन इज दैट CH CH3 CH3 एंड प्लस आप कर रहे हैं यहां पे अल्कोहलिक KOH। ठीक है, तो रिएक्शन विल बी हियर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास अनसब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, ये मोनोसब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा। ठीक है, मोनोसब्स्टिट्यूटेड के वन आपके पास वन सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, तो इट्स अ मोर स्टेबल या मोर रिएक्टिव। ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा आपका रिएक्टिविटी को। इफ यू आर द लीस्ट स्टेबल दैट मीन यू आर लीस्ट रिएक्टिव, मोर स्टेबल दैट मीन मोर रिएक्टिव। ठीक है, सो सपोज यू हैव दिस काइंड ऑफ CH CH3
CH3 Br and CH3. Again you have alcoholic KOH. Alcoholic KOH. So you are saying that the product will be C double bond CH2, CH3 and the CH3. So you are saying here this is disubstituted. ये कैसा आपके पास है? Disubstituted आपके पास है. Disubstituted means क्या होगा? Most reactive या most stable. Most stable that means most reactive. ठीक है, बात समझ गए? यानी कि सब्स्टिट्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उतना ज्यादा आपका रिएक्टिव हो जाएगा. दैट मीन यू आर सेइंग दैट दिस इज 1 डिग्री. ये कैसा आपके पास है? 1 डिग्री है. ये कैसा आपके पास है? 2 डिग्री है. और ये कैसा आपके पास है? 3 डिग्री है. ठीक है. दैट मीन यू कैन से दैट द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअल्केन्स टुवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन इज दैट द 3rd डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन द 2 डिग्री देन 1 डिग्री. ठीक है. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ haloalkanes towards elimination reaction. 3rd degree alkyl halide is more reactive as compared to 1 degree. ठीक है. So this is your reactivity order. This point is clear. Point is clear. That when reactivity is depend on the stability. Depend on the stability. Stability is only depend on the Sargaf rule. And Sargaf rule ये बोलता है आपको कि more substituted alkyl group present to that double bonded carbon का double bond. So this is the major product and this is the stable. ठीक है. Stability is directly proportional to the reactivity. So according to this, the 3rd degree alkyl halide is the more reactive as compared to 2 and as compared to 1 degree. Clear? So this is all about your elimination reaction and you can say you have your Sargaf rule. ठीक है. So next topic will define या will discuss about the elimination reaction and the substitution reaction. ठीक है. These are two kind of reaction, elimination and the substitution. ठीक है. अगर substitution करना होगा तब क्या करेंगे? अगर मैं alcoholic KOH की जगह aqueous KOH लेता हूं तो what will be the product formed in this reaction? So this is called the substitution. We'll talk it the later on. Till the time you revise it perfectly and make the by your own notes. ठीक है. Make your own notes by these all the using the key points. ठीक है. Thank you so much.